A very good morning to all my dear students. I am CS Shweta and today we are starting with the revision of Maternity Benefit Act 1961. So students, Maternity Benefit Act is again, I would not say very important और इसी से क्वेश्चन आएगा but एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट से. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या रिविजन करने वाले हैं, हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, डेफिनेशन मैटर्निटी बेनिफिट्स क्या होता है एंड टाइम पीरियड, बेनिफिट कितने समय तक मिलता है एंड पेनल्टी, राइट. So Maternity Benefit Act, as the name suggests, this is the benefit, a maternity benefit that is being extended to a woman who is in a period of maternity, right? So इस एक्ट में क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस. First, we'll talk about the act and then we'll do a quick revision from the PPT also, right? So you will be getting these notes on the WhatsApp channel, community, and Telegram channel. If you not be able to access, you have my number. You can take these notes from me, and even after this, these notes, we are going to do it from PPT as well. Maternity Benefit Act 1961 regulates employment of women in certain establishment for a certain period before and after childbirth and provides for maternity and other benefits. तो हमने हमने अपने लैंग्वेज में बोला कि मैटरनिटी बेनिफिट इज गिवन टू अ वुमेन. बट यहाँ पे आपको एक अगर मैटरनिटी बेनिफिट को लेके कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, you can write this as an intro. This act regulates employment of women in certain establishment for certain period. It is not for every woman, it is for the women who are in a period of maternity, and even before and after the childbirth they get the benefit, right? So in the introduction, in the introduction of Maternity Benefit Act, they are talking about that where this act is derived from. It is Article 39, Subarticle E, F of the Constitution of India states that provides that state shall in particular direct its policy towards securing that health and strength of workers. ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जिसमें स्टेट को बोला गया है कि आपको हेल्थ एंड वर्कर्स के बेनिफिट के लिए देखना है, चिल्ड्रन बेनिफिट के लिए देखना है, जो कहीं ना कहीं विमेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. बिकॉज we have seen that a lot of women after they come in employment and after they are in a period of childbirth, after childbirth they are not able to rejoin the organization, or a lot of time the employers are not keeping the such women. So that hinders their career, that hinders their work, that hinders their earning, right? In fact, even if she's a the single mother, then it becomes very difficult for them. Maternity Benefit Act are aimed to protect the dignity of the motherhood by providing for full and healthy maintenance of women and her child when she is not working. The Maternity Benefit Act is applicable to mines, factories, circus industry, plantation shops, establishment employing 10 or more persons. It can be extended to other establishment also by state government. अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सारे एस्टैब्लिशमेंट जहाँ पे वुमेन काम कर रही हैं, 10 और या 10 से ज्यादा पर्सन काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ये एक्ट लगेगा. इस एक्ट में विमेन को ड्यूरिंग हर चाइल्ड बर्थ, आफ्टर हर चाइल्ड बर्थ, बिफोर हर चाइल्ड बर्थ, उनको कुछ मैटर्निटी बेनिफिट्स दिए जाते हैं. दे आर गेटिंग लीव्स with salaries, right? So in that case they are able to take care of themselves and the child as well. So कितना समय दिया जाता है, कब से शुरू होता है समय, कब से दिया जाता है, ये सब हम बात करेंगे. जहां तक डेफिनेशंस की बात आती है, वी आर नॉट गोना डू द डेफिनेशन बिकॉज डेफिनेशंस आर नॉट आस्क्ड एंड वी शैल नॉट वेस्ट आवर टाइम. ठीक है ना? तो ये सिर्फ रीडिंग पर्पस के लिए है. Let's talk about provision. Section 4 of the Act says that employment of or work by women prohibited during certain periods. This Act provides that no employer shall knowingly employ a woman in any establishment during 6 weeks immediately following the day of her delivery, miscarriage, or medical treatment of pregnancy. अभी there is a woman, उनका अभी अभी डिलीवरी हुआ है, she has delivered a child, या मिसकैरेज हुआ है, या प्रेगनेंसी टर्मिनेट करी गई है मेडिकली. सो उनको कोई भी एम्प्लॉयर नहीं रखेगा नोइंगली. देखो, अगर उसको नहीं पता तो अलग बात है, अगर वो प्रूफ कर दे कि देखो मुझे नहीं पता था, अभी किसी को देख के उसको कह रहा मुझे नहीं पता था कि अभी दिस वुमन हैज कम आउट ऑफ डिलीवरी और मिसकैरेज और एनी मेडिकल ट्रीटमेंट और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मुझे नहीं पता था. नहीं पता था तो पेनल्टी नहीं लगेगी. बट अगर आपको पता था, देन नो एम्प्लॉयर शैल नोइंगली एम्प्लॉय अ वुमन इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग 6 weeks.
6 वीक्स कितना समय हो गया? तकरीबन 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना। तो आप वुमेन को नहीं रखेंगे काम पे। इट आल्सो स्पेसिफाइज दैट नो वुमन शैल वर्क इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डे ऑफ हर डिलीवरी। तो वुमेन पे भी अप्लाई हो रहा है कि आपको काम नहीं करना चाहिए, और एम्प्लॉयर पे भी लागू हो रहा है कि अगर आपको पता है नोइंगली, आपको किसी भी वुमेन को नहीं रखना है। ठीक है ना? उसके बाद right to payment of maternity benefit. Every woman shall be entitled to and her employer shall be liable. देखो, women है entitled, employer है liable. क्योंकि women को ये benefit मिल रहा है तो बोले women shall be entitled and her employer shall be liable for payment of maternity benefit at the rate of average daily wage for a period of her actual absence, that is to say the period immediately preceding the day of her delivery, the actual day of her delivery and any period immediately following that day. तो कह रहे हैं कि जिस दिन वुमेन की डिलीवरी है उससे पहले उसने जो भी काम करा है, अगर वो एक वेज वर्कर है जिसको डेली वेजेस पे हो रहा है, तो एवरेज डेली वेजेस उसकी निकाली जाएंगी और उनको उसको पे करी जाएगी इवन इफ शी इज ऑन लीव. The average daily wage means average of women's wages payable to her for the days on which she has worked during the period of 3 calendar months. तो अभी आज उस लेडी की डिलीवरी है, ठीक है, और उसने 3 महीना पहले जो भी काम करा है उसका एवरेज डेली वेजेस निकालकर उतना एक वेज निकाला जाएगा कि इसको ये इवन आफ्टर चाइल्ड बर्थ शी इज एब्सेंट फ्रॉम द ड्यूटी, शी विल बी एंटाइटल्ड दोज वेजेस, राइट? A woman shall be entitled to maternity benefit if she has actually worked in an establishment of the employer from whom she wants a maternity benefit for a period of not less than 80 days in the 12 months immediately preceding the date of expected delivery. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको? अभी एक विमेन है, उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है 1 हफ्ते के बाद, और वो ज्वाइन करती है एस्टैब्लिशमेंट आज की, मैं मैटरनिटी बेनिफिट ले लूँ, तो नहीं चलेगा। आपकी जो भी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे 80 दिन पहले तक आपने कम से कम काम करा हुआ होना चाहिए, 80 दिन तक काम करा हुआ होना चाहिए वर्कर के एम्प्लॉयर के अंडर. The maximum period for which a woman shall be entitled to benefit shall be 26 weeks, of which not more than 8 weeks shall precede the date of her expected delivery. 26 हफ्ते. 26 हफ्ते कितने होते हैं बताइए? 26 हफ्ते कितने होते हैं? तकरीबन 6 महीना. ठीक है, तो 6 महीने का 26 हफ्ते का आपको दिया जा रहा है लीव. ठीक है, बोल रहे हैं 26 हफ्ते में से जो भी आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे पहले आप 8 वीक की छुट्टी ले सकते हो. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पहले भी छुट्टी ले लिया और आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी आपने 26 हफ्ते का छुट्टी ले लिया, ऐसा नहीं है. टोटल 26 हफ्ते दिए जा रहे हैं. पहले कुछ लोग, देखो इट डिपेंड्स, अभी ये नहीं बोल सकते कि ऐसा करना ही है आपको, इट डिपेंड्स. अभी कुछ लोग 2 हफ्ता पहले ले लेते हैं अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से, 2 हफ्ता पहले छुट्टी ले लेते हैं, 3 हफ्ता पहले, कुछ 2 दिन की पहले भी छुट्टी नहीं लेते कि सीधा यहीं से जाएंगे चाइल्ड बर्थ के लिए. तो इट डिपेंड्स, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ऑफ अ वुमन. अगर वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से पहले छुट्टी लेना चाहती हैं तो कितनी ले सकती हैं? 8 वीक्स. 8 वीक्स पहले, 1 हफ्ता पहले भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 वीक्स. अगर आप बोलो कि 15 हफ्ते पहले आप छुट्टी ले रहे हो तो फिर वो आपका 26 हफ्तों में तो सिर्फ 8 वीक्स ही आपके माइनस होंगे. However, the maximum period entitled to maternity benefit by women having two or more than 2 surviving children shall be 12 weeks, of which not more than 6 weeks shall precede the date of her expected delivery. If a woman dies during this period, the maternity benefit shall be payable only for the days up to and including the day of her death. तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर उनके 2 या 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो 12 वीक्स पहले आप ले सकते हो, जिसमें 6 हफ्ता पहले आप छुट्टी ले सकते हो, 8 हफ्ता पहले नहीं. Where a woman having been delivered of a child dies during her delivery or dies during the period immediately the date of delivery, she is entitled for benefit, leaving behind in either case the child. The employer shall be liable for maternity benefit for the entire period. अगर डिलीवरी के दौरान या उसके इमीडिएटली एक दिन बाद बच्चे की डेथ हो जाती है तो शी विल बी गेटिंग द मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द एंटायर पीरियड. A woman who legally adopts a child below the age of 3 months
अभी उन्होंने बर्थ नहीं दिया है, बट शी हैज अडॉप्टेड अ चाइल्ड below the age of 3 months, or a commissioning mother shall be entitled to a maternity benefit for a period of again 12 weeks. राइट, 2 और मोर चिल्ड्रन वाले women को भी 12 weeks मिल रहे हैं, and a woman who is a commissioning mother or has adopted a child less than a 3 months, she will be getting 12 weeks maternity benefit. In case where the nature of work assigned to women is of such nature that she may work from home, the employer may allow her to do that. आजकल ये भी चलता है कि चलो भैया वर्क फ्रॉम होम है, तो उसमें वो टाइम जो है निकल जाता है, एंड वर्क फ्रॉम होम भी ऑप्ट कर सकते हैं women. नोटिस ऑफ क्लेम ऑफ मेटर्निटी बेनिफिट. तो क्या आपको मेटर्निटी बेनिफिट लेने से पहले कोई क्लेम डालना पड़ता है, कोई नोटिस डालना पड़ता है? सेक्शन 6 डील्स विद द नोटिस ऑफ क्लेम फॉर मेटर्निटी बेनिफिट एंड पेमेंट. एज पर द सेक्शन, एनी वुमन एम्प्लॉयड इन एन एस्टैब्लिशमेंट एंड एंटाइटल्ड टू मेटर्निटी बेनिफिट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मे गिव द नोटिस. मे, अगर नोटिस नहीं भी देती तो ऐसा नहीं इसको मेटर्निटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब भी मिलेगा. मे गिव नोटिस इन राइटिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू her employer stating that her maternity benefit and other amount which she is entitled to. ठीक है, तो नोटिस देना पड़ता है वुमन को टू एम्प्लॉयर, राइट. Then in case woman who is pregnant, and such notice shall state the date from she will be absent from work and not being the date earlier than 6 weeks. ये तो अभी आपने पढ़ा ही है कि आप जब भी नोटिस दे रहे हो तो आप एकदम, एक तो ये मत बोलो कि मैं कल से छुट्टी जा रही हूँ, आपको पूरा बताना पड़ेगा 6 हफ्ता पहले कि आप किस डेट से अप्रोक्सीमेटली छुट्टी पे चले जाओगे. Any woman who has not given the notice when she was pregnant may give such notice as soon as possible after the delivery. तो अगर आपको अभी नहीं, आप वैसे तो देखो ऐसा नहीं होता है. इफ समबडी इज ऑन अ मैटरनिटी पीरियड तो पहले बताना पड़ता है. ऑन रिसीप्ट ऑफ द नोटिस एम्प्लॉयर उसको परमिट करेंगे टू एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेट. The amount of maternity for a period preceding the date of her expected delivery shall be in advance by the employer to the women on production of such proof कि आप your expected date of delivery is this, और आपको इस पीरियड के लिए, अब वो बोले मैं 3 हफ्ता पहले छुट्टी पे जा रही हूँ, ठीक है, ये रहा 3 हफ्ते का सैलरी, ठीक है, आपको एज एडवांस दी जा रही है, ठीक है. उसके बाद आपके टोटल 26 हफ्ते हैं, 26 में से 3 माइनस करें तो आप आफ्टर डेट ऑफ डिलीवरी आप 23 हफ्तों के लिए और छुट्टी पे रह सकते हैं. Nursing breaks. Every woman delivered of a child who returns to duty after such delivery shall, in addition to the intervals for rest allowed to her, be allowed in the course of her daily work 2 breaks of the prescribed duration for nursing a child until the child attains 15 months. तो जब तक बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता तो इस लेडी को 2 नर्सिंग ब्रेक भी दी जाएंगी, राइट. क्रैच फैसिलिटी. अब मैम ये सब चीजें पता होती हैं वुमेन को, या ये सब चीजें अप्लाई होती है? यस, फैक्ट्रीज में रूल्स लिखे होते हैं, हर जगह उनको एजुकेट करा जाता है कि देखो ऐसा ऐसा है, तुम्हें ये सब तुम्हारे राइट्स हैं, तुम ले सकते हो. तो डेफिनेटली उनको पता भी होता है, एंड दे नो कि उनके कौन से राइट्स हैं और कितने समय तक उनको ये फैसिलिटी मिली जा रही है. क्रेच फैसिलिटी. क्रेच फैसिलिटी तो हमने फैक्ट्रीज एक्ट में भी पढ़ी थी, फैक्ट्रीज एक्ट के वेलफेयर वाले सेक्शन में पढ़ी थी. Every establishment having 50 or more employees shall have the facility of crèche within such distance as may be prescribed, either separately or along with the common. The employer shall allow 4 visits a day to the crèche by a woman. अभी क्या यहाँ कह रहे हैं, अगर 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और बोला जाता है 30 से ज्यादा अगर औरतें काम कर रही हैं तो क्रेच फैसिलिटी देनी चाहिए हर एस्टैब्लिशमेंट को. ये फैक्ट्री एक्ट में बोला गया है. यहाँ पे बोला गया कि किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जहाँ 50 से ऊपर वर्कर पर्सन काम कर रहे हैं वहाँ क्रेच फैसिलिटी होनी चाहिए. As per section 19, abstract of provision of this act and rules made thereunder in the language or languages of the locality shall be exhibited in the conspicuous place. तो यही जो आप अभी सोच रहे थे कि कहाँ लिखा होता है, कहाँ पता होता है, तो ये एस्टैब्लिशमेंट में कहीं पे भी एक कॉन्स्पिशियस जगह जहाँ सब देख सके वहां पे ये नोटिस होना चाहिए. Register. Every employer shall maintain a register. It is the duty of the employer to maintain a register as to the maternity benefit period, किसको maternity benefit मिला, etc. Penalty. Section 21 कहता है if employer fails to pay any amount of maternity benefit to a woman entitled under this act, or discharges or dismisses any woman just after childbirth, he shall be punishable with imprisonment for not less than 3 months, which may extend to 1 year. Right? तो 3 महीने से 1 साल की जेल हो सकती है. एम्प्लॉयर को वैसे ऐसा होता नहीं है. आप पेनल्टी देके छूट जाते हैं, एंड एंड फाइन जैसे लग जाता है 2,000 रुपए से मैक्सिमम 5,000 रुपीज तक का, राइट. एंड विद द फाइन. आपने देखा ये और नहीं लिखा, ये एंड लिखा है. एंड का मतलब कि इम्प्रिजनमेंट होएगी और तुम्हें फाइन भी लगेगा.
बट इन लॉट ऑफ केसेस अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है कि अननोइंगली या बाय मिस्टेक अगर आपने मैटरनिटी बेनिफिट एक्सटेंड नहीं करा है वुमेन वर्कर को, वुमेन एम्प्लॉय को, सो दैट्स नॉट एन इश्यू, आप पेनल्टी पे करके वो बेनिफिट दे सकते हो। बट अगर आप नहीं देते हो और चीजें खराब हो जाती हैं कि आपने दिया नहीं और दे भी नहीं रहे हो, मान भी नहीं रहे हो, सो एज द कोर्ट डिसाइड आपको जेल भी हो सकती है 3 महीने की 1 साल तक, राइट? So that's another chapter. Let's do it from PPT. PPT में अगेन थोड़ा सॉर्टेड तरीके से आपको और बताया गया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में याद कराने के लिए। दिस एक्ट रेगुलेट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ women in establishment for a period before childbirth, after childbirth, and provides for maternity and other benefit. It extends to whole of India. Section 4, very important section of maternity benefit. It says that no employer shall knowingly मतलब जानबूझकर, मतलब पता है तब भी आप कर रहे हो अगर ऐसा, employ a woman in any establishment during 6 weeks immediately following the day. कोई भी इंसान वुमेन वर्कर को अपने यहाँ पे नहीं रखेगा 6 हफ्ते तक, अगर 6 हफ्ते तक एम्प्लॉय नहीं करेगा अगर उसकी डिलीवरी हुई है, मिसकैरेज हुआ है या मेडिकल टर्मिनेशन हुआ है प्रेगनेंसी का। नाउ लेट्स रीड अ क्वेश्चन। Mr. X, an employer of XYZ establishment, wanted to hire 5 female workers on 5 September 2023. Out of 5 female workers, one worker just delivered a baby on 18th August and second worker had a miscarriage on 10th April 2023. Mention the dates when Mr. X can appoint them with respect to Section 4 of Maternity Benefit Act. बताइए। अभी देखिए, अभी आपको यहाँ से भी 6 हफ्ता कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ से भी 6 हफ्ता कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो 6 हफ्ता की डेट लिखेंगे आप कि इनको तो इस डेट के बाद अपॉइंट करा जाएगा, और ये जो सेकेंड फीमेल वर्कर है जिस हु हैड अ मिसकैरेज, सॉरी 5 सितंबर को वो रखना चाहता है, लेकिन एक फीमेल वर्कर का अगस्त में हुआ है डिलीवरी, एक का हुआ है अप्रैल में। अब आप इनकी डेट बताइए कि इनको कब से रखा जाएगा। आई थिंक ये जो अप्रैल वाली है इसका 6 हफ्ता अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तो बिल्कुल एलिजिबल है, 5 सितंबर को ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। लेकिन ये जो पहली वाली वर्कर है जो 18 अगस्त से है, ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना? तो आपको दोनों का डेट लिखना है, दोनों के बारे में लिखना है कि एज पर सेक्शन 4 द second worker is who had a miscarriage is eligible to work. Employer can keep her on work on 5th September. But जो फर्स्ट वुमेन वर्कर है जिसकी 18th अगस्त को चाइल्ड बर्थ हुआ है, वहां पे उसको नहीं रखा जाएगा, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। राइट टू पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट, every woman shall be entitled and every employer is liable, shall be liable to what? Payment of maternity benefit of the at the rate of average daily wage for the period of her actual absence. तो जब वो absent होगी अपने work से because of maternity, childbirth or any reason, so उस case के any reason ही with respect to maternity, उस case में employer is going to pay, shall be liable to pay the maternity benefit and every woman is entitled, shall be entitled to receive that benefit. The average daily wage means 3 महीने का जो पहले का सैलरी होगा उसका एवरेज उसका देखा जाएगा, मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस के हिसाब से होना चाहिए, और 10 रुपीज विच एवर इज हाईएस्ट। तो उस हिसाब से आपको 10 रुपीज को तो हटा ही दो, अब उतना तो आजकल 10 रुपए तो किसी का नहीं बनता। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस और 3 महीने का जो वेजेस है उसको देखा जाएगा, जो भी हाईएस्ट मिनिमम, अगर 3 महीने का एवरेज ऐसा बना जो मिनिमम वेजेस से कम हो जाए तो मिनिमम वेजेस दी जाएंगी, है ना? बोला विच एवर इज हायर। Then a woman shall be entitled to maternity benefit if she has actually worked in an establishment of this employer for a period of not less than 80 days. पिछले 12 महीने में अगर 80 दिन से भी कम काम किया है तुमने तो तुम मैटरनिटी बेनिफिट नहीं ले सकते। अब एम्प्लॉयर बोलेगा 2 दिन पहले आप आए हो और 2 दिन पहले आपने काम किए मेरे यहाँ पे, और अब आप बोल रहे हो कि मैटरनिटी बेनिफिट मिल जाए आपको 2 हफ्ते बाद। नो, नॉट एट ऑल, 80 डेज होना चाहिए। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी वुमेन, तो वुमेन को काम करना है 80 दिन से कम नहीं, और एम्प्लॉयर कितना बेनिफिट देगा आपको? 26 हफ्तों का, जिसमें से आप 8 हफ्ते पहले ही एक्सपेक्टेड डिलीवरी से 8 हफ्ता पहले ले सकते हो, छुट्टियां लेना शुरू कर सकते हो 8 हफ्ता पहले। अभी एक लेडी है उसका डिलीवरी डेट इज 27 सितंबर 2023,
she died before 17th August. Expected date of delivery is 27 September, died before 17th August. तो बेनिफिट विल बी गिवन टिल 17th अगस्त क्योंकि उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। दूसरे केस में कह रहा है डाइज ऑन 27 सितंबर वाइल चाइल्ड बर्थ, और उस दौरान शी डाइज ऑन 27 सितंबर, शी विल गेट द बेनिफिट फॉर द एंटायर पीरियड, ठीक है। If a woman dies during this period, the maternity benefit shall be payable only for the days up to and including the day of her death. तो देखो 17 को डेथ हुई और 17 तक का बेनिफिट टिल 17 and including 17th, समझ गए। Where a woman having been delivered of a child dies during her delivery or during the period immediately following the date of her delivery, for her which she is entitled for the maternity benefit, leaving behind in either case. देखो अभी यहाँ पे बोल रहे 27 सितंबर को उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ हो गई, जो बच्चा है उसकी भी डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई लेकिन बच्चे की डेथ नहीं हुई। दोनों ही केस में शी विल गेट द बेनिफिट फॉर द एंटायर पीरियड, राइट। सो these are the cases of मैटरनिटी बेनिफिट। इसको याद करने के लिए छोटा सा पीपीटी बनाया गया, नोट से भी आपको पूरा बता दिया गया कि मैटरनिटी बेनिफिट में क्या क्या चीजें हैं जो बात करी गई हैं, राइट। So in the quick revision, you have revised maternity benefit act. फिर भी if there is any doubt, you can reach back to me on Telegram channel. You can reach back to me via WhatsApp. You can comment and ask me anything if you want, right? So एक revision करने के लिए I think this much is very much conveniently given to you so that you will be able to write if such question persists. तो एग्जाम में कुछ भी आता है with respect to maternity, you will be able to write. Okay. चलिए, so I'll see you in the next class with the new revision of new act. Till then, please study hard, stay calm. जितना काम रहेंगे उतना अच्छे से लिख पाएंगे, उतना ही आपका रिट्रीवल प्रोसेस लिखते हुए अच्छा हो पाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिए। इसमें से अगर मैं बोलूं कि क्या राइटिंग प्रैक्टिस है, तो वो जो जो बेनिफिट वाला जो लिखा गया ना, उसको एक बार राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। इस चैप्टर से ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, राइट। चलिए, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।